السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں علی خان اور میں اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی مسلک سے میں تعلق رکھتا ہوں۔ میری بات ہوئی ہے دیوبندی مناظر عارف الحقانی زکوٰۃ خانی سے۔ یہ کسی سے بحث کرتے ہوئے اس نے ایک آڈیو بنائی تھی جس میں تمام جھوٹ اس نے بولا تھا۔ جب میں نے اس کا جھوٹ کا ایکسپوز کیا تو بعد میں اس نے پھر میرے پاس فون کیا، ٹھیک ہے، اور وہ عالم پر بحث کر رہا ہے کہ آپ نے کہا کہ وہ عالم نہیں ہے۔ بحث اس پر نہیں ہے، بحث کتاب پر ہے۔ اگر ہم نے کہا کہ وہ عالم نہیں ہے تو بحث اس پر نہیں ہے، بحث اس پر ہے کہ وہ ہمارا معتبر عالم نہیں ہے یا وہ کتاب ہمارے لیے معتبر نہیں ہے۔ اصل جو مقصد ہے وہ کتاب کے حوالہ، تم نے جو کتاب کا حوالہ اس نے دیا ہے وہ ہمارے لیے معتبر ہی نہیں ہے۔ اور اس نے کہا ہے کہ میں بریلیوں میں آخری کیل ٹھوک رہا ہوں، یعنی سب سے مضبوط دلیل اس کو بنا کر پیش کر رہا ہے جو غیر معتبر ہے۔ تو جو غیر معتبر کتاب ہے اس کو مضبوط دلیل بنا کر پیش کر رہا ہے، جبکہ اصول یہ ہے تمام مکتب فکر کے نزدیک کہ غیر معتبر کتاب کو دلیل کے طور پر پیش ہی نہیں کیا جائے گا۔ جو کتاب معتبر ہی نہیں ہے بھائی، اس کو مانی ہی نہیں جائے گی، تو اس کو تم غیر معتبر کتاب کو تم معتبر بنا کر پیش کر رہے ہو کہ آخری کیل ٹھوک رہا ہوں۔ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ سننے والے کو تو یہی لگے گا کہ یہ تو بھائی بریلیوں کی کتاب ہے اور ان کے مذہب میں ایسا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کتاب ہمارے لیے معتبر نہیں ہے۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں ثابت کروں کہ ہمارے لیے معتبر نہیں ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ اصول یہ نہیں ہے۔ اصول یہ ہے کہ جو دعویٰ جو دلیل دیتا ہے اس کے ذمہ ہے کہ وہ لائے پیش کرے کہ وہ کتاب معتبر ہے، تبھی تو وہ دلیل دے، نہیں تو اس کو دلیل ہی نہیں دینا چاہیے۔ جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کتاب ہمارے لیے معتبر نہیں ہے تو دلیل ہی نہیں دینا چاہیے اسے، ٹھیک ہے، تو دلیل اس کے ذمہ ہے۔ حالانکہ آپ جائیں، تمام آڈیو ہمارے جو علماء بھی ہیں، تمام ویڈیو ان کا موجود ہے، میرے پاس خود ویڈیو موجود ہے کہ ہمارے علماء کا کہنا ہے کہ وہ کتاب ہمارے لیے معتبر نہیں ہے۔ اس کا آڈیو سن لیں، اس کے بعد میں میری جو بحث ہوئی ہے پھر میں اس کو لگاتا ہوں یہاں پر۔ سامعین باوقار، میں اپنے اس دعوے پر کہ بریلوی حضرات انبیاء سے بڑھ کر مولوی احمد رضا بریلوی کو سمجھتے ہیں، پہلی دلیل پیش کرتا ہوں، اور بریلیوں کے اس نام نہاد مناظر سبحانی شاہ رضوی کو بڑی جرأت کے ساتھ چیلنج کرتا ہوں کہ تو ایک حوالہ غلط ثابت کر دے جو چور کی سزا ہو، میں بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن مجھے یقین کامل ہے سبحانی شاہ رضوی تو کیا اس کی پوری ضرورت بریلیت مل کر بھی میرے پیش کردہ حوالہ غلط ثابت نہیں کر سکتی۔ اب سبحانی شاہ رضوی، پہلی دلیل ملاحظہ کر، احکام شریعت، اس کے صفحہ نمبر 27 پر لکھا ہے اعلی حضرت کی زبان و قلم نقطہ برابر خطا کرے اس کو ناممکن فرما دیا ہے۔ اب رضا خانیوں کو مولوی احمد رضا فضول بریلوی لعنت اللہ علیہ سے اس قدر عقیدت و محبت ہے کہ نقطہ برابر بھی خطا ماننے پر تیار نہیں ہیں، لیکن حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے اتنا بغض اور عداوت ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق ان رضا خانیوں کا یہ عقیدہ اور یہ نظریہ ہے کہ ان سے گناہ کبیرہ صادر ہو سکتے ہیں۔ سبحانی شاہ رضوی اٹھا اپنے مجدد مولوی احمد رضا بریلوی کو ماننے والے اور اپنے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی کی کتاب جال حق، وہ اس کے صفحہ نمبر 340 پر لکھتا ہے کہ انبیاء کرام ارادتاً گناہ کبیرہ کرنے سے ہمیشہ معصوم ہیں، کہ جان بوجھ کر نہ تو نبوت سے پہلے گناہ کبیرہ کر سکتے ہیں اور نہ اس کے بعد، ہاں نسیاناً خطاً صادر ہو سکتے ہیں۔ سامعین باوقار، ان عبارات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بریلیوں کے یہاں مولوی احمد رضا بریلوی کا مقام حضرات انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑھ کر ہے، اور اس بات کو بریلیوں نے بھی محسوس کیا ہے، ان کے علماء نے بھی تسلیم کیا ہے کہ بریلوی حضرات اعلی حضرت فاضل بریلوی کو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے بڑھ کر اور اعلیٰ مانتے ہیں۔
اب میں اپنے دعوے پر دوسری دلیل پیش کرتا ہوں اور رضا خانیت کے تابوت میں آخری کیل ٹھونکتا ہوں، اور ساتھ میں اس خبیث سبحانی شاہ رضوی سے کہتا ہوں کہ اگر تو اندھا نہیں ہے تو دیکھ اپنے ان مولویوں کی کتابوں کو، ان میں یہ باتیں موجود ہیں یا نہیں۔ سبحانی شاہ رضوی، اب میں تیرے سامنے آخری دلیل پیش کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحبزادہ ابو الخیر محمد زبیر کی کتاب مغفرت ذنب، وہ اس میں لکھتا ہے کہ بعض اعلیٰ حضرت کے عقیدت مند ایسے بھی ہیں جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ کر اور اعلیٰ سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کو ٹھکرا کر اعلیٰ حضرت کے ترجمہ کو ہر حال میں صحیح قرار دینے پر مصر ہیں۔ ظاہر ہے جب ان حضرات کی نظر میں اعلیٰ حضرت کے سامنے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اقوال کی کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں معاذ اللہ، تو دیگر انبیاء اور اولیاء اور مفسرین محدثین کے اقوال کی کیا اہمیت ہوگی؟ سامعین باوقار، کتنی صاف اور واضح عبارت میں نے پیش کر دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ اس کی آڈیو آپ نے سنی ہوگی، اور یہ کہہ رہا ہے، کتاب کے حوالے سے بتا رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے قلم سے، زبان سے خطا نہ ہونا ناممکن ہے، مطلب خطا ہونا ناممکن ہے، ٹھیک ہے نا، زبان اور قلم سے، مگر معصوم تو نہیں نہ سمجھا، اور نسیاناً خطا نہیں ہو سکتی ہے، ایسا بھی نہیں لکھا انہوں نے۔ نسیاناً خطا، کیونکہ آگے ابھی بات سمجھ میں آ جائے گی آپ کی۔ نسیاناً خطا اور ہے، اور خطا اور ہے، گناہ کبیرہ خطا اور ہے، نسیاناً خطا اور ہے، یہ سب اس کی الگ الگ کیٹیگریاں ہیں۔ اس کا دعویٰ ہے کہ بریلویوں کا یہ عقیدہ ہے، آگے بتا رہا ہے کہ بریلویوں کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام سے گناہ کبیرہ صادر ہو سکتے ہیں۔ پھر یہ جال حق کی عبارت پڑھ رہا ہے، اس میں صاف طور پر خود ہی پڑھ رہا ہے کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام سے گناہ کبیرہ صادر نہیں ہو سکتے، وہ پاک ہیں۔ بتائیے، یہ دعویٰ وہیں اسی لفظوں میں آپ واپس کر کے سن لیں آڈیو اس کا، یہ خود کہہ رہا ہے کہ بریلیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور انبیاء علیہم السلام سے گناہ کبیرہ ہو سکتے ہیں، اور کتاب کی عبارت جب پڑھ رہا ہے تو وہ اس میں لکھا ہوا ہے، خود ہی پڑھ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام گناہ کبیرہ سے پاک ہیں، نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی۔ یہ تو بات ہو گئی۔ اس کے بعد نسیاناً خطا صادر ہو سکتی ہے، یعنی لغزش، جیسے حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ نسیاناً خطا گناہ کبیرہ نہیں ہے، نہ گناہ صغیرہ ہی ہے، وہ سمجھ گئے، وہ گناہ میں آتا ہی نہیں ہے، وہ خطا ایسی خطا ہے جو گناہ میں نہیں آتا ہے۔ اور یہ گناہ کبیرہ کا دعویٰ کر رہا ہے، عبارت بھی پڑھ رہا ہے تو عبارت میں صاف طور پر لکھا ہوا ہے کہ گناہ کبیرہ نہیں بھی ہو سکتے ہیں۔ بتائیے اس کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ زکوٰۃ کھا کھا کر ان دیوبندیوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ آپ پھر سے آڈیو سن لیں میں بتا رہا ہوں ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے یار۔ اسی آڈیو میں پڑھ رہا ہے، دعویٰ کر رہا ہے کہ گناہ کبیرہ ہو سکتے ہیں، اور پھر آگے عبارت جب پڑھ رہا ہے تو اس میں صاف طور پر ہے کہ گناہ کبیرہ ہو ہی نہیں سکتے ہیں، انبیاء نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی۔ عبارت یہ لکھی ہوئی ہے، دعویٰ کیا کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد میں مغفرت ذنب کہا، جب اس نے حوالہ دیا، بولتا آخری کیل ٹھوک رہا ہوں، یعنی سننے والے کو لگے کہ بڑا معتبر کتاب یہ پیش کر رہا ہے، جبکہ پہلے اسٹارٹ میں اس نے دعویٰ کیا ہے کہ بریلیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو انبیاء سے افضل یہ لوگ مانتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین، جبکہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بعض ایسے ہیں، سب کو نہیں، یہ مطلق طور پر کہہ رہا ہے، لیکن اس میں کتاب میں لکھا ہوا بعض، لیکن پھر بھی وہ کتاب ہمارے لیے معتبر ہی نہیں ہے۔ اب اس میں بعض لکھا ہو یا کچھ بھی لکھا ہو، وہ ہمارے لیے معتبر ہی نہیں ہے، معتبر اس کو ثابت کرنا چاہیے۔ اور یہ اصول ہے
سب کے نزدیک جتنے بھی مکتب فکر ہو، چاہے وہ شیعہ ہو، رافضی ہو، قادیانی ہو، سب کے نزدیک، دیوبندی ہو، سنی ہو، وہابی ہو، اہل حدیث، سب کے نزدیک یہ ہے کہ دلائل میں معتبر کتابیں پیش کی جاتی ہیں، معتبر کتابیں جو ہے وہی پیش کی جائیں گی، جو غیر معتبر ہیں دلائل میں اس کو نہیں پیش کیا جائے گا۔ یہ اصول خود اس اصول کے خلاف جا رہا ہے۔ اور ایک بات اس نے اور کہی ہے، معاذ اللہ رب العالمین، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ پر اس نے لعنت بھیجی ہے، جبکہ پوری دیوبندیت ان کو مسلمان مانتی ہے۔ اور کتاب النوازل کتاب النوازل ان لوگوں کی کتاب ہے جو 19 جلدوں میں فتاوی ہے، دیوبند کی ہے وہ، اور اس میں اس نے لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ پر تنقید کرنا کسی قسم کا یہ درست ہی نہیں ہے، وہ تنقید کرنے سے منع کر رہا ہے اور یہ لعنت بھیج رہا ہے۔ بتائیے، یہ اپنے مسلک والوں کی بات نہیں مان رہے لوگ۔ اس کو صاف طور پر وہ عبارت لانی چاہیے کہ اعلیٰ حضرت سے بھی نسیاناً خطا نہیں ہو سکتی ہے اور انبیاء سے ہو سکتی ہے، تب افضل ثابت ہوگا، حالانکہ ایسا ہی نہیں ہے عبارت۔ سمجھ گئے؟ تو یہ اول درجے کا جاہل ہے یہ لوگ، باقی اور کچھ نہیں۔ ان کے اندر بغض بھرا ہوا ہے، جبکہ ان کے مولویوں نے ہی خود لکھا ہے، وہ وقت آنے پر میں حوالہ دوں گا ان لوگوں کو، کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بغض میں یہ سب کیا جا رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت پر اس طرح سے طنز کیا جاتا ہے، کیونکہ ان کے دیوبندی اکابروں کو انہوں نے کافر لکھا ہے، اور وہ اپنی مرضی سے نہیں۔ علماء حرم نے جب ان پر کفر کا فتویٰ لگایا تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لگایا۔ سمجھ گئے؟ سارے علماء کو یہ لوگ نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، کیونکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے جو کفریہ عبارات تھے وہ حرم شریف میں لے کر گئے اور وہاں کے حرم کے علماء کو دکھایا انہوں نے۔ اس وجہ سے یہ بغض میں اپنے علماء کی محبت میں یہ لوگ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ پر اس طرح کی تنقید کرتے ہیں، اور یہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم پر یہ لوگ اتنا اعتراض کرتے ہیں، تمام اعتراضات کرتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں معلوم، وہ نہیں معلوم، یہ نہیں معلوم، ٹھیک ہے نا؟ اگر کوئی فرقہ اگر ایسا کہتا ہے تو ان کے خلاف یہ آواز نہیں اٹھاتے ہیں، لیکن ان کے علماء کے خلاف اگر کوئی آواز اٹھایا تو ان کے پیٹ میں درد ہونے لگتی ہے۔ تو انبیاء علیہم السلام سے زیادہ تو یہ لوگ اپنے عالموں کو مانتے ہیں، کیونکہ یہ ساری زندگی اپنے علماء کی دفاع کرنے میں لگے ہوئے ہیں، مگر ہم عاشق رسول ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کرنے میں ہم لوگ جٹے ہوئے ہیں۔ سمجھ گئے؟ کون کس کو افضل مانتا ہے وہ واضح طور پر ہے، موجود ہے۔ سمجھ گئے کہ یہ لوگ جو بے عیب نبی میں عیب تلاش کرتے ہیں، ہم اس لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ ہمارے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو لگا کہ اس میں عیب ہے، ان لوگوں نے عیب تلاش کی ہے، بے عیب نبی میں، سمجھ گئے، عیب تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع میں وہ آواز اٹھائے۔ اور یہ لوگ اپنے مولویوں کی تو افضل کون مان رہا ہے؟ اپنے اکابر کو افضل کون مان رہا ہے؟ انبیاء سے۔ اس سے تو اس کے بنائے ہوئے اصول سے تو ثابت ہو رہا ہے کہ دیوبندی اپنے اکابر کو انبیاء علیہ السلام سے افضل مانتے ہیں۔ تو جو اصول یہ لوگ بناتے ہیں اسی کو توڑتے ہیں، اور ساری کتابوں کے جو حوالے ہیں یہ جھوٹ بتاتے ہیں۔ ان میں کوئی ایسا مولوی پیدا ہی نہیں ہوا آج تک جو سچ بولتا ہو۔ میں دعوے کے ساتھ، میرا دعویٰ ہے اس پر، پوری دنیا دیوبندیت جب چاہے مجھ سے بات کر لے، عالم کا نام بتائے جو مشہور عالم ہے، اور اس کے بعد میں اس کا جھوٹ دکھانے کے لیے تیار ہوں، اسی چینل پر دکھاؤں گا۔ میری اس سے جو بات ہوئی ہے آگے آپ آڈیو سن لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کمنٹمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ آڈیو آپ کو کیسی لگتی ہے، جتنا بھی ہمارا آڈیو آپ لوگ سنتے ہیں اس میں بتائیں ضرور۔ ہلو، آپ جس ویکتی ہیلو، ہاں دیوبندی مولوی عارف الحقانی زکات خانی صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی بریلوی بولیے۔ مناظر سنیے، بریلوی بولیے۔ مناظر علی خان عالم میں علی صاحب۔ خان ہی بات کر رہا ہوں۔ جی عالم صاحب، میں تو طالب خیریت علم سے ہوں۔ ہیں؟ نہیں تو آپ کی آئی ڈی پر تو عالم صاحب لکھا ہوا ہے۔ ارے وہ پتہ نہیں کیسے لکھا ہوا ہے، لیکن میں طالب کیسے؟ علم ہوں۔ آپ کی آئی ڈی ہے، آپ نے لکھا ہوگا یا دوسرے ارے نے کسی لکھا میں ہوگا؟ صرف علی خان اور علی خان لکھ کر آتا ہے، کسی میں علی نہیں، خان عالم آپ صاحب کی جو آتا آئی ہے، ڈی کسی میں ہے کچھ اس آتا ہے۔ نمبر سے، سنیے علی خان، ارے آپ جو کی جو اس ظاہر نمبر ہے سے آئی ڈی ہے آئی اس ڈی میں کو لکھا مانیں گے، ہوا ہماری ہے بات مانیں کہ گے۔ علی خان عالم صاحب۔
आज मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारी बात हुज्जत है, आईडी हुज्जत है? क्या हमारी बात हुज्जत है या आईडी हुज्जत है? आईडी हुज्जत नहीं तुम्हारे लिए? नहीं, क्यों? किसी के लिए भी किसी की आईडी थोड़ी हुज्जत होती है। अरे आईडी कौन बनाता है? आपने बनाया? नहीं, किसने? मुझे तुम्हारे बनाना ही नहीं साथी ने आता है, बना किसी दिया? को दिया था बनाने के लिए, उसने बनाया है। अच्छा उसने, यानी वो समझता है आपको आपको आलिम पता साहब। नहीं क्या समझता है, किस हिसाब से अच्छा बनाया उसने। चलिए खैर ठीक है, मैं क्योंकि मैंने आपका नाम देखा आईडी पर, हेलो। तो यही लिखा हुआ आया कि हेलो। अली खान आलिम साहब। हेलो ठीक है, तो अली खान भाई आप सुनो मेरी बात। भाई, हमारा कैसा है? कौन सा भाई? कैसा भाई? चलिए ठीक है, अरे भाई तू भाई हो या ना हो मुझसे गर्ज नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो है हम जो है इंतशार पसंद नहीं है, ठीक है ना? अच्छा, इंतशार तुमने फैलाया और तुम इंतशार पसंद नहीं हो? अरे इंतशार कौन फैलाया अब कौन सुनो, नहीं मैं फैलाया, वो बता तो रहा हूँ। आप सुनो, ऑडियो में आप जो है जाहिर कर रहे हैं। तुमने चलिए कहा खैर, जो इंतशार आपने जिस नहीं फैलाया। मसले को अरे लेकर मैं यार, आपसे बात करना बड़बड़ाते हो, चाहता यही हूँ। मजा नहीं सुनो, आता है। सुनो, सुनो, मैं सुनो ना। साबित कर देता हूँ, आपने कुरान कहा से इंतशार था, तुमने आपने फैलाया। ऑडियो में कहा था साहबजादा अबुल खैर जुबैर वो आलिम नहीं है। हमारा मोतबर आलिम नहीं है, जी जी, आपने कहा था हमारा कि मोतबर किताब नहीं है। हाँ अबुल खैर मोहम्मद जुबैर वो आलिम भी नहीं है, ये आपके जुमले हैं। हाँ, तो उसमें क्या डॉक्टर कहा था? लिखा हुआ है। वो आलिम भी नहीं है आपने तो कहा आलिम था। भी अगर होगा और कि एक आलिम, बात और बहस इस पर आपने नहीं ये है, भी कहा था, किताब सुनिए, वो अली हमारे लिए खान भाई। मोतबर नहीं है। जी जी, आलिम बहस उस साहब पर सुने। नहीं है, बहस वो हमारी आलिम साहब, किताब जो है वो अरे हमारे आलिम लिए साहब, मोतबर सुन लिया नहीं है। वो करो। किताब बहस इस पहले पर सुन होनी लो चाहिए। मेरी बात, पहले मेरी बात सुन लो फिर जवाब दो, ठीक है? सुन लिया मैंने बात। हाँ तो पूरी बात सुनो ना, आधी अधूरी बात को सुन रहे हैं आप। बहस अभी उस पर पूरी नहीं बात है, वो सुनो, उसके आलिम बाद हो या जवाब ना दो। हो, हमने कह दिया ठीक है, आलिम अब नहीं है, सुनो कोई ना। बात नहीं। अब अरे वो आलिम खामोश हो हो, या मेरी ना हो, पहले- उससे हमें कोई गरज नहीं। वो किताब मेरी बात हमारे हो लिए जाने दो। मोतबर नहीं है। आलिम साहब, अली खान आलिम साहब, पहले अरे मेरी यार, बात वो पूरी हो किताब- जाने दे। देखिए, ठीक है, उसके दलाइल बाद में आप किताब जवाब दें। हुज्जत है या वो आदमी हुज्जत है? ठीक है, अब सुनो ना, मेरी बात तो सुन लो। सुना क्यों दिए नहीं और सुनते? तुमने और हमने भी बता दिया। इतनी जो है आपके अंदर घबराहट क्यों अरे पैदा हो रही हमारे है? अंदर घबराहट नहीं, घबराहट तो तो तुम्हारे पहले- अंदर है। चलो ठीक है, बकौल तुमने आपके कहा अंदर कि तुमने घबराहट आपको इंतशार नहीं नहीं फैलाया। है, मैं कुरान तो से साबित आप करने जो के लिए है- तैयार हूँ तो कि इंतशार आप तुमने जो है फैलाया, पहले तुम्हारी मेरी जमात ने बात फैलाया। को तुम सुन क्यों ले, नहीं सुनते हो मेरी उसके बात? बाद जवाब दें, ठीक है? आप इधर क्यों उधर नहीं भागने सुनते की हमारी कोशिश ना बात? करें। अब्दुल माजिद मैंने भाई, कहा कि मैं कुरान से भाई, साबित करता हूँ कि अब इंतजार देख तुमने लीजिए, फैलाया। तुम कह रहे हो कि इन्होंने इंतजार मुझसे नहीं है, ये तुमने कहा नहीं था फैलाया। मैं कह रहा हूँ कि कुरान से साबित साहबजादा करूंगा कि अबुल तुमने खैर फैलाया। जुबैर जो है वो आलिम भी नहीं है, इनके ये जुमले अरे मौजूद हैं, आलिम हो या ना हो, हाँ, हमारे मौजूद हैं, जुमले ठीक है? हैं। अगर वो आलिम निकला तो कोई बात नहीं, बहस उस पर नहीं है कि वो आलिम है कि नहीं माजिद है। भाई, दूसरी बात इन्होंने ये कही थी कि वो जो है बरेलवी मसलक का मुअतबर और मारूफ आलिम वो जो है शख्स नहीं है, आलिम हाँ, नहीं हाँ, है, ये नहीं है ना? हाँ। इसने ये बात कही थी। हाँ, तो इसी के ताल्लुक से हम इससे बात करना चाहते हैं, लेकिन ये पहले मेरी बात को पूरी सुने, उसके बाद सुनी जवाब पूरी। दें। तुम्हारी क्या बात सुने? तुम्हारी पूरी जमात में जो झूठ बोलते हैं लोग। सामईन देख लीजिए, क्या सामईन सुनो? देख लीजिए, क्या किस तरीके सामईन से दिखाओगे? अली खान तुम्हारे आलिम बात पर साहब क्या के यकीन ऊपर किया जाए? घबराहट तारी है। कि जब इन्होंने तुम्हारे सबसे अकाबिर पहले से दावा लेकर मेरे आज तक ताल्लुक जितने से भी ये मौलवी कहा हैं है। सब झूठ ही बोलते हैं। क्या सुने हम तुमसे? अली खान आलिम साहब, सुनो मेरी बात। अरे मैं आलिम नहीं, आपने- देखो जबरदस्ती किसी को आलिम भी कहना ये भी आपके तो आईडी गुनाह पर लिखा है। हुआ है, आपके लोगों ने लिखा है, सुनो। क्या आलिम लिखा है? साहब, अली खान आलिम साहब, क्या लिखा ठीक है हमारे लोगों ने? आपके लोगों ने लिखा है, जैसा कि आपने कहा कि मैं दूसरे को दिया था आईडी बनाने के लिए, हाँ। तो उसने लिखा है अब- अली खान आलिम साहब, ठीक है? तो मैं आपको मुखातिब कर रहा हूँ, क्यों आपको मिर्ची लग रही है? सुनो। नहीं, मैं आलिम नहीं हूँ ना। जबरदस्ती किसी को आलिम बनाना ये भी तो दुरुस्त नहीं है। मैं तालिबे इल्म हूँ। अच्छा, तो जबरदस्ती किसी के बारे में ये कहना भी दुरुस्त नहीं कि क्या? वो आलिम ही नहीं है, कौन है ना? क्या? अबुल हाँ, खैर तो उसमें मोहम्मद किताब में जुबैर के उसमें ताल्लुक आलिम से तूने हजरत कहा है देखिए, जब कि कोई वो भी जो है शख्स जब आलिम भी मोतबर होता नहीं है तो नाम के आगे हजरत लगता तू है। जाहिल है, जो और आलिम है, हजरत जो इस मुफ्ती है, तालीम जो के लिए अल्लामा है, जो हजरत डॉक्टर उसमें है, लगा ही नहीं, उसके उसमें तो ताल्लुक से तू डॉक्टर कहना लिखा कि वो हुआ है। आलिम भी नहीं है ना? हाँ, नहीं है तो- आलिम, मैं बोल रहा हूँ ना, लेकिन वो हमारे सुनो, लिए मोतबर सुनो। थोड़ी है वो शख्स। हाँ, मैं साबित कर रहा और हूँ, उसमें सुनो, जो मैं इबारत साबित है कर वो रहा हूँ। हमारे लिए मोतबर अली नहीं है। खान, तेरे बहस नजदीक इस पर वो नहीं जो है, बहस मोतबर किताब है पर या है। नहीं है, लेकिन वो तेरे किताब उलमा हमारे के लिए मोतबर है या नजदीक जो नहीं, देखो ये बात वो नहीं चलेगा। अल्लामा है, मुफ्ती पूरी है और देवबंदियत मौलाना जहर है। का प्याला पी लेगी, मगर मुझसे सुनो, उस अब इस खामोश हिसाब हो। से बात नहीं करेगी। वो किताब आलिम का हो नाम या है, ना हो, सुनो, बहस इस पर नहीं है आलिम बात। साहब, आलिम साहब सुनो मेरी बात।
मैं बोल रहा हूँ वो आलिम है या नहीं है, बहस इस पर नहीं है। वो किताब हमारे लिए क्यों मोतबर नहीं, नहीं है। बहस तो इसी पर है ना। उसमें आपने कहा कि वो कहा है। आलिम भी नहीं है, हर हमने इस पर आलिम गिरफ्त की थी हर आपकी। आलिम हर किसी के लिए मोतबर होता है, ऐसा कहाँ उसूल मौजूद है किसी के भी भाई मज़हब तो में? हमने ये कहा है कि किसी के भी अपने मज़हब ऑडियो में में क्या हमने हर ये कहा आलिम है मोतबर होता कि है? नहीं होता। साहबजादा अबुल खैर मोहम्मद जुबैर ये जो है मुअतबर आदमी, हमने किस ऑडियो हमारे में लिए कहा है? मोतबर नहीं है, साबित करो हमारे किस आलिम ने मोतबर कहा है? तो हमने कब ये दावा किया कि वो मोतबर है? तुम्हारे ऑडियो में मौजूद है, क्या मैंने दावा किया? पर उसी में तुमने ऑडियो में, वो ऑडियो मैंने लगाया हुआ है, उसमें क्या हमने ये नेट दावा पे किया लगाया है कि हुआ है कि साहबजादा बरेलियों का आलिम, बरेलियों की खैर- किताब, ये सब क्या हाँ। है? तुमने तो झूठ क्यों बोला बरेलवियों की उसमें? किताब है, बरेलवी आलिम है हमारे लिए वो। मोतबर ही नहीं है बेवकूफ। अबे तेरे लिए कहाँ मोतबर है मोतबर या है? नहीं है, मोतबर जब लेकिन होगी तब तेरे उलमा किताब तो उसका होगी ना। दिफा कर रहे हैं। अब देखो ये झूठ बोल रहा है। 204 उलमा जय्यद क्या? उलमा कौन उसका चार दिफा कर उलमा? रहे हैं। क्या? 204 जय्यद उलमा उसका दिफा कर रहे हैं। अरे दिफा साहबजादा करना अबुल खैर मोतबर मोहम्मद होने की जुबैर दलील को थोड़ी है। सुनो, अरे किताब का दिफा नाम है करना मोतबर फैसला होने की दलील थोड़ी है। मक़फ़िरत-ए-ज़म। अजीब बात है, साबित कर अब्दुल हमारे माजिद कितने भाई, कौन इसको से खामोश उलमा करो, दिफा मैं कर रहे हैं दलील देने लगा कि हूँ और मोतबर इसकी उनको बात झूठा गलत है। साबित अरे करना तो हो दलील गया। वैसे ही देगा जैसे उस किताब मग़फ़िरत-ए-ज़म का हवाला दिया था, ऐसे ही वो हवाला इसमें भी सामने- दे देगा। तो ऐसे इसमें आलिम का हूँ देगा बहू कि वही वो बात है, मोतबर नहीं ना होंगे। हमने मक़फ़िरत-ए-ज़म का हवाला गलत दिया, ना उसकी अरे इबारत मोतबर गलत पढ़ी। मग़फ़िरत-ए-ज़म का जो तूने कहा हमारे बरेलियों की किताब है, मोतबर किताब है, मोतबर आलिम है, वो पहले हम साबित साबित कर। कर रहे हैं ना, वो हम पहले उसको साबित बरेलवी कर, साबित इधर कर रहे उधर हैं, भाग मत। हम उसको बरेलवी साबित कर रहे हैं। बरेलवी साबित करने नहीं, मोतबर साबित कर। हर बरेलवी मोतबर का जरूरी दावा थोड़ी है मैंने कि नहीं मोतबर किया, होता है। मोतबर का हर दावा आलिम मैंने किया मोतबर ही भी नहीं नहीं। होता है, ऐसा किसी का भी मोतबर नहीं। का ना दावा देवबंदियों में, मैंने ना किया ही नहीं। हदीसों में, ना अहले सुन्नत व जमात अरे बरेलियों में, बेवकूफ अली किसी के अंदर ये खान, वसूल ही नहीं है कि आलिम हर साहब बरेलवी जो है मोतबर मोतबर होने हो, का मैंने या हर दावा ही नहीं देवबंदी किया। देवबंदियों के जब लिए मोतबर मोतबर हो, होने का हर मैंने अहले दावा ही हदीस नहीं किया, हदीसों तो के लिए हमसे मोतबर ये हो, ये मुतालबा वसूल ही करना नहीं है। कि और ये उसको जबरदस्ती मोतबर वसूल यहाँ साबित कर करो, रहा ये है। क्या माना जाता है? अरे वो बरेलवी हुआ तो क्या हुआ? हालांकि बरेलवी तूने अगर कहा होगा है तो कि भी जरूरी नहीं कि वो साहबजादा मोतबर हो। अबुल खैर मोहम्मद जुबैर वो वो जो हमारे है लिए मोतबर नहीं है। बरेलियों के नजदीक मोतबर नहीं है। नहीं ठीक है, है। तो इसका हवाला तुझे देना है, मुझे हमें नहीं थोड़ी देना देना है। हवाला। तुमने किताब दिया, दावा तुम्हारा है कि ये बरेलियों का मोतबर है, तो तुम उसको पहले साबित करो कि वो मोतबर है। लानतुल्लाह अलल काज़िब। लानतुल्लाह अगर अली खान ये अलल दिखा काज़िबीन, दे आमीन। कि मैंने ऑडियो में ये कहा है कि ऑडियो में तुमने साहबजादा हवाला अबुल खैर क्यों मोहम्मद दिया? जुबैर बरेलियों का मोतबर आदमी है, देखो मैं जो दलाइल है में मोतबर मान किताबों जाऊंगा। से हवाला दिया जाता है, ना कि वो सामईन गैर क्या कह रहा मोतबर है? किताबों से। देखिए, तुमने इसकी गैर मोतबर चालबाजी किताबों देखिए, से इसकी हवाला देकर मक्कारी आखिरी देखिए, चीज तुमने तैयारी कहा मैं देखिए। ठोक रहा हूँ। अब देखिए और वो किताब सामईन, गैर मोतबर है। इससे मैं तो दोनों ऐसा दावे जो जाहिल झूठे मुनाफिर और कहाँ बातिल पैदा के हो दुनिया गया कि साबित जो कर गैर देता मोतबर हूँ। किताब है उसका किताब का हवाला नाम दे, है और कहे मैं फैसला आखिरी कील सबसे मक़फ़िरत-ए-ज़म। मजबूत कील इसका ठोक रहा हूँ, लिखने वाला है सबसे मजबूत कील ठोक रहा है, अल्लामा और वो अबुल गैर मोतबर असनाद किताब से। मोहम्मद अशरफ सियालवी, ये अरे बरेलियों का मैं बहुत पूछ बड़ा रहा हूँ, अल्लामा है ये उसूल जो और तुम क्या मुनाजिर है, बोलते देखो ये हैं, बहुत बड़बड़ा बड़ा रहा है, मुनाजिर इसकी है। औकात नहीं ठीक है। चल मैं वजाहत कर दूंगा, रख इसकी दे फोन। किताब जो है हेलो आप जिस हेलो हाँ, बड़बड़ाना होगा तो बात मत करना। हेलो हौसला रख, इधर से भी सही से बात कर, उधर से भी बात कर। अरे भागा क्यों अली खान तू? भाग नहीं रहा था, थंबनेल बना रहा था तेरा। भाग क्या रहा? जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब नहीं। भाग कर थंबनेल बनाता है मजदूर। अभी डालना नहीं है नेट पर तेरा ऑडियो। क्यों अबे थंबनेल बनाता है, भाग कर फोन काट के बनाता है। फोन काट कर काटना ही भगौड़े पड़ेगा। जो चीज मैं बुज़दिल। पूछ रहा हूँ वो बता ही नहीं रहा, अबे बड़बड़ा रहा है। भगौड़े अब बुज़दिल। देखो बड़बड़ा रहा, तूने- भगौड़ा तो तेरी पूरी जमात है। खामोश रे, लो सामई भागा भगौड़ी ये फोन लो काट सामई, करके। लो सामई, क्या लो सामई? ऑडियो में आप सुनेंगे ये कि कौन उसूल भागा है, मेरे ठीक है ना? पास पेश करो पहले। किसी भी मजहब में हो जो तुमने अभी उसूल बयान किया है क्या? कि गैर मोतबर की किताब को हवाले में पेश करना जरूरी है। ठीक है, जैसा अब कि खामोश तुमने हो जा। मग़फ़िरत-ए-ज़म जो हमारे लिए मोतबर नहीं है, उसको हवाले में सबसे मजबूत हवाला आपने समझकर जो पेश किया अपने ऑडियो में, ये साबित करो कि ये किसने उसूल बयान किया कि गैर मोतबर किताब को हवाले के तौर पर देने के लिए, और वो भी मजबूत दलील बनाकर उसको पेश करना, ये कहाँ से साबित है? ये किस फिरके में ये जायज, किस मकतबे फिक्र में ने इसको जायज समझा है? चलो ठीक है, बताओ। अब बात हो गई। हाँ। मुहतरम सामईन, आप ऑडियो समाअत कर लें। मैंने ये दावा नहीं किया है कि साहबजादा अबुल खैर मोहम्मद जुबैर वो मुअतबर है ना? मैंने ये दावा ही नहीं किया। मोतबर है या नहीं है ये अली खान साबित करेगा, ठीक है ना? साबित करेंगे। दलील तुम दे रहे हो, तो दलील तुमने दिया जब वो मोतबर नहीं है तो।
बीच में मत बोलो। दलील तुमने बीच दिया में- क्यों? वही मैं अरे बोल रहा बीच हूँ, में जब मत झूठ बोलो। बोलोगे तब पेश करूंगा। बीच में मत बोलो। तुमने अली खान दलील साहब, क्यों दिया जब वो किताब अली मोतबर खान नहीं आलिम है? साहब, बीच में मत बोलो। तुमको अब्दुल अभी तक माजिद पता भाई, ही नहीं है वो किताब देखो हमारे ये लिए किसने बोल मोतबर रहा है? है, और उसका तुम दलील दे रहे हो, मैंने कह रहे हो इस कि बात मैं को आखिरी खामोशी कील के ठोक रहा साथ हूँ, इत्मीनान के साथ सुनो। सुनने वाले को लगे कि सबसे मजबूत दलील यही है, तो खामोश हो और जाना, तुम्हारे मैं जवाब कहने दे के रहा हूँ। हिसाब से भी सबसे मजबूत दलील सामईन, वही था। मैं जवाब दे रहा हूँ, मेरी बारी है, तो ये बारी बीच तो में तुम्हारी बोलने है, लगा। लेकिन बारी में जब तुम खामोश झूठ बोलोगे, गलत झूठ का गलती से बोल रहा हूँ, चार क्या बात मैंने से झूठ काम बोला? करोगे तो मैं ठीक खामोश रहे करूंगा। पहले, खामोश रहे। सामईन, इसने दावा किया है कि साहबजादा अबुल खैर मोहम्मद क्या तुम्हारा जुबैर वो दावा गैर नहीं मोतबर है? है। तुम्हारा दावा नहीं है कि वो मोतबर किताब है? क्या तुम्हारा दावा मैंने नहीं है? अपनी ऑडियो में कहीं कहा है? तो फिर तुमने वो दलील के तौर पर क्यों पेश किया जब वो मोतबर किताब नहीं है? अच्छा, तुम्हारा दावा ही नहीं है तो फिर ऐसा अच्छा, हवाला अच्छा, देना ठीक है। कहाँ से अब सुनो, साबित है? सुनो। किस अच्छा, वक्त सुनो, खामोश में किसी ने इसको जायज कहा हो और खामोश उसको रहो, वही मैं बता रहा हूँ, वही मैं बता रहा हूँ, वही हाँ, बता चलो रहा हूँ, बताओ, खामोश रहे। बताओ। सामईन, दावा किसने किया है कि साहबजादा देखो, अबुल खैर मोहम्मद जुबैर दावा जो है वो तुम्हारा- गैर अब देखो, मोतबर तो मैं है, पूछ रहा हूँ, वो नहीं यानी बता। बरेलियों का वो मोतबर आलिम नहीं है। वो ये कुछ भी दावा नहीं है, अली वो खान ने हमारे किया लिए है। मोतबर जब किताब भी दावा नहीं है, ना अली मोतबर खान ने आलिम किया है। है, तो मैं अली पूछ खान रहा ये हूँ। पहले साबित अरे करे यार, कि दलील तुमने साहबजादा दिया, अबुल खैर दावा मोहम्मद तुम्हारा है जुबैर कि ये बरेलियों का जो बरेलियों है के यहाँ जो किताब है है। गैर और मोतबर जो- है। अब देखो, और बड़बड़ाना इसकी शुरू कर बात, दिया। क्योंकि अली खान ने ये दावा किया था, तेरी अली औकात खान ने नहीं ये है, तो दावा जहर किया का था प्याला कि पी मेरे लेगा, मगर नजदीक दलील नहीं दे ये पाएगा। गैर मोतबर है और ये आलिम भी नहीं है। क्या आलिम इसने की दावा बहस किया? नहीं है, बहस ये है कि आलिम वो भी किताब नहीं है और हमारी नहीं है, गैर हमारे लिए मोतबर है। मोतबर नहीं तो है। अली खान की और बात वो बरेलवी किताब नहीं भी मानते हमारी हो, हैं। लेकिन बरेलवी हमारे लिए इसको जो मोतबर नहीं है। जाहिल और मोतबर ना किताबों जाने के क्या हवाले क्या दिए इस पर जाते फतवे हैं। लगाते हैं, है ना? तो किसी इसकी से बात मुनाजरा करने के लिए, मुबाहसा करने के लिए, किसी का रद्द करने के लिए सच्चा है मोतबर अपने किताबों से कौल दलील दी में, जाती तो है, ये ना कि गैर अपने मोतबर से। मोतबर आलिम दीन से ये साबित करे कि साहबजादा अबुल अरे खैर तुम्हारा मोहम्मद दावा जुबैर है वो कि ये गैर मोतबर बरेलियों है। की किताब है, तो साबित उसको कर पहले पहले। साबित करो कि हमारी मोतबर किताब है वो। दावा अबे तो तुमने तेरे दलील दिया उलमा, उस किताब से। तेरे उलमा, तेरे बड़े बड़े उलमा जो है, मिलेगा चलो पूरी दुनिया चलो साबित को करो। मैं चैलेंज अली करता खान हूँ। आलिम ऐसे साहब ही साबित कर रहा हूँ। कई सुनो किताबों सुनो के ये सुनो लोग हवाले देते हैं जो सुनो हमारी सुनो मोतबर अली किताब ही खान नहीं है। आलिम साहब साबित कर और रहा हूँ। ये खामोश रहो। वसूल ही नहीं है माजिद भाई इसको कि खामोश हर कराओ। किताब जो बरेलवी की माजिद हो, भाई, हर खामोश किताब कराओ। मोतबर मैं जो है साबित कर हो। और रहा क्या हूँ। देवबंदियों के नजदीक मैं ये भी साबित नहीं है कर रहा हूँ। कि मतलब इसको जितनी भी खामोश किताबें कराओ। देवबंद में छपी है सारी की सारी अली भाई, मोतबर ही हो। ऐसा हाँ, किसी इसको के अंदर नहीं खामोश है। कराओ। अहले हदीसों के अंदर भी इसको ये खामोश उसूल कराओ मौजूद जल्दी है से। कि जितनी भी अहले हदीसों ने किताबें लिखी हैं खामोश सारी हो की जाओ, सारी मैं मोतबर हवाला ही दे हो। रहा हूँ, मैं और साबित जो कर रहा हूँ। फरीक है वो उस गैर मोतबर का हवाला दे। ये खुद हाँ। उसूल, मुनाजरे का उसूल और रद्द करने का उसूल खुद ये तोड़ रहा है। ठीक है, अब मैं साबित कर रहा हूँ। क्या खामोश रहो। साबित कर रहा है? तू खुद कह रहा है, अभी तुझे लो। मालूम ही नहीं साबित क्या वो करेगा? पहले खामोश झूठ करो, बोलकर अली साबित खान। करेगा। खामोश क्यों नहीं रहता है? सामईन अभी ये भागा था अरे और तू फिर जो है उसूल पहले बोलने उस नहीं उसूल दे को रहा है। तूने क्यों तोड़ा? गैर मोतबर कहाँ किताब उसूल को तोड़ रहा तू हूँ? क्यों मैं तो मोतबर उसको ये किताब बरेलवी हवाले आलिम में पेश साबित किया? कर रहा हूँ। हम अपने दावे को गैर मोतबर साबित कर रहे हैं। किताब को तूने हवाले में क्यों पेश किया? तू साबित कर गैर मोतबर है। तू साबित कर। साबित कर कि मोतबर है। अल्लाह अकबर, मैंने मोतबर होने का दावा जब नहीं किया तो मैं तो कैसे फिर साबित करूं? तुमने दलील में क्यों पेश किया? दलील में पेश ही नहीं अरे करना चाहिए, क्योंकि दलील भाई में तो मोतबर किताबों के तुम्हारा हवाले पेश किए साहबजादा जाते अबुल हैं। खैर ये मोहम्मद तुझे जुबैर नहीं पता, बरेलवी मुनाजिर आलिम किसने है। बना दिया तुझे? अल्लाह अकबर, तू मुनाजिर किसने है? मुनाजिर बना दिया तुझे? तू मुनाजिर है? मैं मुनाजिर नहीं हूँ, लेकिन क्या हूँ क्या नहीं हो तुझसे नहीं लेना देना, लेकिन ये अगर उसूल तू तू बता वाक़ियतन पहले कि मुआवजे गैर के मोतबर उसूल से किताब वाकिफ मुनाजिरे में होता। पेश किया जाता है। अरे ये किसने यार, बताया? ऐसे कैसे मुनाजिरे के बात कौन करता से है उसूल तू? में मौजूद है? खामोश है, इत्मीनान से बात कर मुझसे। मुनाजिरे के कौन से उसूल में ये चीज मौजूद है कि गैर मोतबर किताब को दलील में पेश किया जाए? ठीक है, अब खामोश रहो। हाँ, पेश ठीक है, कर। बोलना नहीं। हाँ, पेश खामोश कर, जो रहना। मांग रहा वही पेश ठीक है। करना, दूसरी बात करेगा फिर मैं बोलूंगा। इसने कहा है कि मुनाजरे के कौन से उसूल में है कि गैर मुअतबर किताब से हवाला पेश किया जाए, हाँ है ना? हाँ। यानी कि ये कह रहा है कि ये मग़फ़िरत ज़म और साहबजादा अबुल खैर मोहम्मद जुबैर जो है ये गैर मोतबर है, हाँ। है ना? दावा इसने किया। हाँ। और ऑडियो में आप सुनेंगे भी कि इसने दावा यही किया है कि वो आलिम भी नहीं है और वो जो है हमारे नजदीक अब गैर देखो, मोतबर ये है, उसूल है ना? से फिर अब खामोश रहे, चुप दावा रहे, हमारा खामोश नहीं, रहे, दावा खामोश तुम्हारा रहे। है।
दावा खामोश क्यों नहीं इतना रहता है? कि गैर खामोश तो मोतबर पहले सुन यार, अल्लाहु अकबर अरे या सुन ले, खामोश क्यों नहीं रहता तू है? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये बात को घुमा रहा सामईन या है। खामोश तू क्यों नहीं गैर रहता है? मोतबर आलिम की किताब से हवाला दिया जाएगा। मैं ये मोतबर उसूल साबित जो कर रहा हूँ, तुमने मैं तोड़ा, मोतबर ये साबित क्यों कर रहा हूँ। तोड़ा? चल क्यों मैं गैर मोतबर मोतबर साबित कर रहा किताब से हूँ, तूने मैं हवाला मोतबर दिया साबित और कर तूने रहा कहा कि हूँ, मैं बरेलियों मैं में आखिरी मोतबर पीर साबित ठोक कर रहा रहा हूँ। हूँ। सबसे मजबूत दलील बनाकर उसको अल्लाहु तुमने पेश किया अकबर, मैं गैर मोतबर मोतबर किताब साबित को। कर रहा हूँ। चल तू गैर मोतबर साबित कर, मैं गैर मोतबर साबित करता मोतबर हूँ। पहले तू साबित कर, तेरे हाँ, जिम्मे तू साबित कर रहा हवाला हूँ। दे चुका है बहुत सुन पहले। सुन मैं खामोश पहले रह, तू मैं हवाला साबित दे कर रहा इसका हूँ। क्यों हमारे लिए मोतबर है ये किताब। किताब है, सुनो अब सुनो, खामोश रहो। उसमें भी तू झूठ बोलेगा, पहले स्कैन मेरे पास भेज। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु जैसे अकबर। जाल हक के ताल्लुक से तूने झूठ बोला है, उसी अच्छा, ऑडियो सबसे में पहले ये बता दो, सारी किताबों, पहले जितनी ये भी बता दो, किताबों के इसने नाम लिया है, सारा सबसे झूठ पहले बोला है। अशरफ मैं बता सियालवी रहा हूँ मोतबर है देवबंदियों में तुम्हारा? कोई ऐसा है ही नहीं है कि जो सच बोल रहा हो। अशरफ सियालवी तुम्हारा मोतबर है? क्या अशरफ सियालवी जो है तुम्हारा मोतबर है? क्यों? बात उस पर पूछ नहीं रहा हूँ होनी मैं। चाहिए, बात इस पर होना चाहिए, नहीं, होना चाहिए। उसी के किताब से इसका मोतबर होना साबित कर रहा हूँ ना, नहीं तो इसलिए आप पूछ रहा हूँ। किसके कौन सा मोतबर होना साबित करोगे? ये मैं कह रहा हूँ कि ये क्या नाम मैंने लिया है, अशरफुल उलमा अल्लामा अबुल हसनात मोहम्मद अशरफ पहले स्कैन सियालवी। भेजो मेरे पास। खामोश झूठ रहो, बोलना पहले होगा मैं पूछ रहा हूँ। भी। पहले तू खामोश जाल हक के खामोश क्या ना सामने तंजूरी ईमान से देखिए तूने ये झूठ कैसे बोला बात है। और पहले सुनो मेरी मगफिरत बात। ज़म से तूने झूठ बोला और उसके बाद जाल हक के ताल्लुक से झूठ अरे बोला। तेरे अब कहने इस से किताब थोड़ी से भी झूठ हो झूठ बोल जाएगा। रहा हो, क्या भरोसा? तेरे पहले कहने से स्कैन थोड़ी भेज झूठ मेरे हो पास, फिर जाएगा, बात कर। इसीलिए पहले स्कैन कबूल भेज, करवा रहा हूँ, रख फोन। इसीलिए पहले कबूल स्कैन करवा भेज, फिर रहा हूँ। बात कर। झूठ बोलता है हाँ। तुम लोग का सारा सुन, जो सारी भागना बातें नहीं। जो किताबों के ए, हवाले से अली झूठ बोलते। खान, चल भागना नहीं, भागना नहीं, सामने देखो भाग रहा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, हमारा जो अंबिया के ताल्लुक़ से हमारा जो अक़ीदा है, तमाम अक़ायद की किताब में यही चीज़ लिखा हुआ है, इन्नल अंबिया कुल्लहुम मासूमूना अनिल ख़ताए अनिस सगीरत वल कबीरत मिन क़ब्ल नबुव्वत व बादन नबुव्वत। ठीक है, कि अल्लाह के जितने भी अंबिया हैं, ठीक है ना, जितने भी नबी हैं, रसूल हैं, सब छोटी बड़ी ख़ताओं से पाक हैं, छोटे बड़े गुनाहों से पाक हैं, नबूवत से पहले भी, नबूवत के बाद भी। ठीक है ना, ये मासूम है। कुल्लहुम मासूमूना जो है ना, मासूम है। लेकिन हम औलिया को, मुजद्दिद को, या अंबिया के बाद जितने भी समझ लीजिए जो हैं, जैसे सहाबा कराम हैं, और उसके बाद में जो ताबईन है, तबा ताबईन है, औलिया कराम हैं, इन सब को हम लोग मासूम अनिल ख़ता नहीं समझते हैं, बल्कि महफूज अनिल ख़ता समझते हैं इनको, कि ये महफूज हैं, इनसे ख़ता नहीं होती है। लेकिन हम मासूम नहीं समझते हैं, मासूम समझते हैं अंबिया कराम को। ये बहुत बड़ा मर्तबा है। ठीक है, और इसमें ये इनके लिए है, अंबिया के लिए है, कि अंबिया मासूम होते हैं छोटी बड़ी ख़ताओं से, और औलिया नहीं मासूम होते हैं। औलिया सिर्फ़ महफूज होते हैं, अल्लाह ताला उनको ख़ताओं से बचाता है। समझ गए? बस यही चीज़ हमारा अक़ीदा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।